Hello everyone, welcome back. We have started Curiosity for grade 8th and chapter 1, exploring the investigative world of science. We were here yesterday. We will start from here. So let's get started. But it's not just calendars or the movement of the sun and moon that are linked. ये सिर्फ कैलेंडर्स और सन और मून के मोमेंट के बारे में नहीं है जो कि लिंक्ड है. राइट हेयर ऑन अर्थ देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय मार्वलस? मार्वलस मीन्स गुड. Marvelous means good. Right here on earth there are good and complex pattern of relationship between living organism and their environment. Living organism, we are living organism and environment. ये किस चीज़ के बारे में है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है और एनवायरमेंट के बारे में है जो क्या हमसे कनेक्टेड है. एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टीनियस्ट इंसेक्ट, छोटे कीड़े, टू द लार्जेस्ट व्हेल, लार्जेस्ट एनिमल, largest whale, from blades of grasses to tall trees, depends on the response to the air, water, sunlight and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet. Every living being from tiniest insect to the largest whale, from blades of grasses. blades of grasses means क्या होता है? single narrow leaf to tall trees, लंबे trees, depends on the response to the air, जो किस पे डिपेंड करते हैं? एयर पे, वाटर पे, सनलाइट पे और अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम. ये सब क्या क्रिएट करते हैं? इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं. ऑर्गेनिज्म, ग्रासेस, टॉल ट्रीज, लिविंग थिंग्स, टीनियस्ट इंसेक्ट, लार्जेस्ट व्हेल, दीज आर क्रिएटिंग इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अवर प्लेनेट. जो किसको सपोर्ट करते हैं? लाइफ को. In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenge that our planet now faces. Most importantly, the Earth lies at the perfect distance from the sun. Earth lies at the perfect distance from the sun. अर्थ सन से एक परफेक्ट डिस्टेंस पे लाई करती है जहाँ पे वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ पे वाटर क्या रहता है? लिक्विड में रहता है. एंड इट हैज़ एन एटमोसफेयर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ. और यहाँ पे ऑक्सीजन है जो एटमोसफेयर हमें क्या करती है? प्रोवाइड करती है. वी ब्रीथ वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. और अर्थ हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है बाई यूवी, harmful UV rays. But human activities on the planet can cause small changes in the temperature of the earth, disrupting climate patterns with dangerous consequences. Disrupting changes या interruption, dangerous consequences result. But human activities on the planet, but human activities earth पे क्या करती है? small changes in temperature of the earth, disrupting climate pattern with dangerous consequences. At the heart of both the problem and any possible solution is us. What is the meaning of this line? This line says the statement is reminder that we are the author of our circumstances and the only ones who can rewrite them. मीन्स कॉज भी हम करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम ही फाइंड करते हैं अर्थ पे. वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट. हम ही हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड अवर एक्शंस. और अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम ही वो लोग हैं जो साइंस से अंडरस्टैंड करके इन क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड अवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेजेस ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंट विल बी की in helping us protect the delicate balance on which life depends. The challenge ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity as you guide. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं हमारी जर्नी में, और
The challenge ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve this difficult problem with curiosity as your guide. Let's move to another page. So there is a kadai in which a puri is frying. Firstly, remember that science is everywhere. You don't need a fancy laboratory to do simple experiment. Even your kitchen at home is a wonderful place to observe and ask question. सबसे पहले मैं ये याद रखना है कि साइंस हर जगह है. आपको एक फैंसी लेबोरेटरी की नीड नहीं होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. आपका किचन ही काफ़ी है, एक वंडरफुल प्लेस है टू आस्क क्वेश्चन एंड ऑब्जर्वेशन. ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी. बस आपको क्या ज़रूरत है, क्यूरियोसिटी से स्टार्ट करने की और केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग व्हाट हैपन इफ. हैव यू नोटिस हाउ पूरी और भटूरा पफ्स अप मीन्स फूल जाना. देखो पूरी कैसे पफ हो रही है, मीन्स फूल रही है. व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल, जब हम उसे गर्म तेल में रखते हैं. और हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम. और एक फुल्का कैसे स्वेल अप करता है जब हम उसको डायरेक्टली फ्लेम पे रखते हैं. क्यों ऐसा होता है? डज इट पफ अप लाइक अ बलून? एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दीज आर क्वेश्चंस अ साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू. ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो साइंटिस्ट भी पूछ सकते हैं और आप भी पूछ सकते हैं. Let's see how we can investigate this simple everyday phenomena like a scientist would. First, we will try to ask a scientific question. What are the different things that may change the way a puri puff up when fried? What are the different things that may change? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज हुई जब एक पूरी को फ्राई किया गया और पूरी पफ हुई. टू आंसर दिस वी मे वॉन्ट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट. फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मेन चीज़ें देखेंगे. वॉट ऑल कैन वी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट. हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व, और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं टू सी इफ दी चेंजेस मेड एनी डिफरेंस. क्या ऑब्जर्व करते हैं अगर कुछ चेंज हो रहा है तो. In this case, we can perhaps think of the changing of the thickness and size of the rolled dough. हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. थिकनेस पूरी की चेंज कर सकते हैं या फिर साइज ऑफ द रोल्ड डो को चेंज कर सकते हैं. वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर भी चेंज कर सकते हैं. हम जैसे आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं. वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑयल. हॉट ऑयल के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं. अपनी फ्लेम को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं. और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल्ड डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज. क्या कर सकते हैं हम, ड्रॉप द रोल्ड रोल्ड डो को हम क्या कर सकते हैं, कढ़ाई में हम वर्टिकली ड्रॉप कर सकते हैं, एक एंगल पे ड्रॉप कर सकते हैं और धीरे धीरे ड्रॉप कर सकते हैं. नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. ये सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेस वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर. सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट यस और नो आंसर. जब हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कभी कभी उसका आंसर सिर्फ यस और नो होता है और कभी कभी एक नंबर भी हो सकता है कि पूरी कितने टाइम में पफ हुई है. मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ अप, यस और नो, यस. और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पफ अप, कि कितने सेकंड लिए पूरी ने पफ अप होने के लिए. वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव अ थिन साइड ऑफ पूरी. क्या एक वेरी थिक लेयर ऑफ डो, क्या एक मोटा डो भी थिन साइड ऑफ पूरी दे सकता है. फर्दर वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम. एक्सपेरिमेंट करते टाइम किसी एक कंडीशन को हम चेंज करेंगे, बाकी दूसरी कंडीशंस को हम सेम रखेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, क्या कर सकते हैं हम, या तो हम ऑयल को बॉइलिंग हॉट रख सकते हैं या फिर उसको गैस की फ्लेम को कम करके ऑयल को कम हॉट रख सकते हैं. वी वुड यूज सर्कल ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस. हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ऑफ डो को सेम थिकनेस का रख सकते हैं. ड्रॉप देम इन द सेम वे. इट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया टू कीप नोट ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. डिड द ऑयल स्प्लैटर
oil splatter means small droplets of hot oil being flung into surface. मीन्स जब हम पूरी फ्राई कर रहे हैं तो गर्म तेल के छींटे बाहर गिर जाते हैं या कुक पे गिर जाते हैं. क्या वो स्मेल कर रही है, क्या वो स्मोक, क्या उसमें से धुआं निकल रही है. एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस. डू पूरी पफ बेटर, क्या पूरी अच्छे से फूली है. व्हेन मेड फ्रेश मे थिंक व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो. क्या पूरी अच्छे से फूली है अगर हम फ्रेश आटे से पूरी बनाई है या फिर हमने पहले से गूंदे हुए आटे की पूरी बनाई है. व्हाट हैपन इफ आई प्रिक अ होल. प्रिक मीन्स होल कर देना, पंक्चर कर देना किसी चीज़ में. अगर मैं पूरी को फ्राई करने से पहले अगर पूरी में होल कर दूंगी तो फिर क्या होगा. दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्या करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प करते हैं. दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन. ये एक आइडिया है कि आप सिस्टम से इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं. एंड जस्ट सो यू नो, even the simple everyday observation of a puri swelling is not really completely understood by the scientist today. So whether it is swelling of a puri or the shrinking bright part of the moon after Purnima, let your careful observation guide you along your exploration into the investigative world of science. Happy investigation. So this is all for today. Stay tuned for second chapter. Bye bye.